Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video, I will explain the test of chapter 1st Computer System in class 9th. In this chapter, we will learn about overview of communication technology, difference between data and information, IPUs, the input and data processing cycle, design of computers, strength and weakness of computer, input device, output device, storage device, and the processor. Let's start a first by one. An overview of communication technology. A communication technology, also known as information technology, that means IT, information technology, refer to all program and equipment that are used to process and transmit informations. It includes traditional and digital means like the internet, multimedia, email, telephone, and other sound and video based communication means which require expert to take care of their proper functions. The world depend on them for remaining contact with each other for business and social purpose. Communication technology influence business and society by making the exchange of idea and information more efficient. In this context, access to the internet has become a virtual development tool. Or simply we can say that what is communication? हम क्या कह सकते हैं कम्युनिकेशन होती क्या है? देखिए, सपोज दैट एक यूज़र है आपका, वेट, ओके, क्लियर। जैसे कि एक आपका यूज़र है, दिस इज द यूज़र, एंड second user, and this user want to communicate a other user. Which technology is used is called communication technology. जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करेंगे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि लाइक ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ओके। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, आप यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज द इंफॉर्मेशंस, ओके। Is called communication. Most people believe that the term data and information means the same thing and they are interchangeable. However, there is difference between the two words. Every day we come across various facts from reading newspaper and magazine, watching news, surfing the internet. With this, it is this fact and figure is the row from which normally don't make much sense are called as data. जैसे का कोई सेंस नहीं हो, don't make much sense, raw fact material, raw fact material is called data. Clear? And the data which is processed as per the need of a person to get meaningful interpretations of the data is called informations. Like that, this information. Clear है? Analysis data processing, that is IPO model या IPO cycle, input process cycle. The process of converting raw data to information is called data processing. Data processing क्या होता है? जो भी हमारा raw data होता है
ओके, रॉ डाटा जैसे कि आपका कोई भी मैगजीन न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं हम, जो बहुत सारा डाटा होता है, जो फैक्ट मटेरियल जो भी होता है, उसे हम कन्वर्ट करते हैं, किस में करते हैं, रॉ डाटा तो इन्फॉर्मेशन में, इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग. द डाटा इज in it raw from is the input, the process data is called as output, and the process from the IPO cycle. The different steps involved: first is input, second process, and third output. Okay, input: various input device like keyboard, mouse, etc are used to enter the raw data into the computer for processing एंड देन स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस. जो इनपुट में जो डाटा है वो कीबोर्ड, माउस, इनके थ्रू एंटर होता है डाटा, और कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसे स्टोर करता है डिवाइस में प्रोसेसिंग के बाद. ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग. क्लियर है? पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होके डाटा स्टोर हो जाएगा. प्रोसेस: in this step the input data is processed according to set of instructions given to a processor and to get the required output, that is information. क्लियर है? जो भी हमारा डाटा है वो हमारा डाटा प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन. जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसे दे रहे हैं, जो भी उस पर हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर डाटा पे हमारा प्रोसेस के इनसाइड आएगा, एंड वो फिर हमारा स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाएगा. एंड लास्ट नेक्स्ट इज आउटपुट. द प्रोसेस डाटा इज सेंड बैक टू द यूज़र थ्रू डिफरेंट आउटपुट डिवाइस लाइक अ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, etc. जो भी डाटा पे हमने प्रोसेस किया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे उसे प्रोसेस होने के बाद वो अब आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपके सामने शो होगा. जैसे विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर के थ्रू शो हो सकता है, प्रिंटर के थ्रू आप पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, स्पीकर के थ्रू आप साउंड सुन सकते हैं. ओके, क्लियर है? इट इज़ अ IPO साइकिल: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. Okay, the instruction and data are stored in the computer memory. Thus, we can say that data processing requires an input device, a processing device, memory to store data, and an output device. These components are collective known as computer hardware. जो आपके डिवाइस होती है, जैसे कि आप प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें, आउटपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट डिवाइस की बात करें, ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर होते हैं. हार्डवेयर क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम. हार्डवेयर क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर. क्लियर? एंड दिस इज द IPO साइकिल. डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर. Block diagram which show the design of a computer. You can see the dotted line show how the control unit of the CPU control all the component of the computer system. Okay, wait, ये आपका डायग्राम है. ओके, डन. ये जो डॉटेड लाइन है इसमें how the control unit of CPU control all the component of computer system. कैसे कंट्रोल करता है उसको सबको रिप्रेजेंट हो रहा है. क्लियर? मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा. देखिए, इनपुट है, इनपुट डिवाइस में से हमारा डाटा है, कंट्रोल यूनिट उसे मैनेज कर रही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये पूरा क्या है? CPU है, ये आपका पूरा टोटल CPU. ओके, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी जो आउटसाइड यूज़ करते हो आप, CD, पेन ड्राइव, वो सेकेंडरी मेमोरी है. आउटपुट आपका क्या कर रहा है? वो आपका रिजल्ट शो कर रहा है. जो डार्क एरो लाइन है ये डाटा फॉलो बता रहा है. पहले इनपुट से CPU में जाएगा, CPU से ALU से प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से अटैच होगा, डाटा स्टोर होगा, फिर आउटपुट के थ्रू प्रोसेस हो जाएगा. क्लियर है? एज यू कैन सी द CPU कंट्रोल ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल्सो मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड इट. CPU क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर सिस्टम को, एंड उन्हें मैनेज करता है कैसे डाटा को फ्लो करना है, डाटा को इनसाइड द सिस्टम. बिफोर वी डिस्कस द हार्डवेयर कंपोनेंट इन डिटेल, लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए कंप्यूटर. अब हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट हैं उसे डिस्कस से पहले थोड़ा सा हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या स्ट्रेंथ क्या क्या होती है. क्लियर? फर्स्ट इज स्पीड. The computer are very fast as compared to human being. They can execute instruction in fraction of a second. The processing speed of computers is in the range of millions to billion of instructions as per second. This means that the time required to execute an instruction can be measured
इन नानो सेकेंड और पिकोसेकेंड। सिंपली हम कह सकते हैं स्पीड में इट प्रोवाइड द फास्ट रिजल्ट कंपेयर टू ह्यूमन, ये बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है कंपेयर टू ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? द कंप्यूटर विल गिव यू accurate and consistent result if the input provided to them is accurate and reliable. An accurate input will produce incorrect result, that is garbage in garbage out। सिंपली क्या है एक्यूरेसी में? हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड द एक्यूरेट रिजल्ट विदाउट मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं आएगी और एक्यूरेट रिजल्ट होगा। जैसे कि सपोज करो मैंने कोई आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, आप उसे मल्टीप्लिकेशन में 3 की जगह 4 करोगे तो आप मिस्टेक करोगे, ना कि कैलकुलेटर या मशीन मिस्टेक करेगी। ओके, रिलेबिलिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, लेट डिस्कस अ रिलेबिलिटी एंड डायग्लेंसी। कंप्यूटर आर बिल्ट विद इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर मोर रिलेबल। जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो मोर रिलेबल होते हैं। ओके, एंड दे हैव ए लो फेलियर रेट एज पर डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड। जल्दी फेलियर नहीं होते हैं, टायर्ड नहीं होते हैं, जैसे कि ज़्यादा हीट नहीं होते हैं, बहुत ईजिली वो डेवलप किया जाता है। एंड कंप्यूटर आर मोस्ट सुटेबल टू हैंडल रिपीटेड टास्क। जो भी हमारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, द कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी विच कैन स्टोर ए हग अमाउंट ऑफ डाटा। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा, जितना भी डाटा है आपको स्टोर कर सकता है वो। एंड इट वुड टेक अ लॉट ऑफ स्पेस टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट 1000 ऑफ स्टूडेंट इन पेपर फॉर्म। जितनी पेपर फॉर्म में इंफॉर्मेशन है 1000 में वो एक सिंपली में उसे स्टोर कर सकती है, छोटे से छोटे स्पेस में। ओके, एंड कंप्यूटर कैन स्टोर देम ऑन सेवरल डिस्क विच विल टेक अप लेस स्पेस देम योर लंच बॉक्स। ओके, बहुत स्मॉल स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो। सिंपली हम कह सकते हैं वी कैन स्टोर द डाटा फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म यूज। ओके, और नेक्स्ट इज versatility. A computer can be used for different types of tasks, from writing letter, drawing and editing pictures to listening to music and watching videos. बहुत सारे टास्क हैं जैसे कि हम एक साथ कंप्यूटर पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि लेटर को राइट कर रहे हैं, उस पर ड्राइंग को कर रहे हैं, लेटर एंड ड्राइंग कर रहे हैं, और एडिटिंग पिक्चर कर रहे हैं, टू लिसन म्यूज़िक, एक साथ वीडियो भी देख सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। ओके, और सिंपली हम कह सकते हैं वर्सेटिलिटी में कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे इट कैन एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, and it can perform the fundamental arithmetic operations of addition, subtraction, multiplication and division. It can perform logical operations. It can transfer data internally. Data can follow from one part to other part in the machine. Okay, it is a versatility. These are the some characteristics of a computer. Let us discuss the some limitation या weakness of computer क्या क्या होती हैं। First is lack of decision making power, that is most important. It have no decision making power. The computer can't think and take decision on its own. They have to be programmed according to the need by us. कंप्यूटर कभी ना तो सोच सकता है ना डिसीजन ले सकता है। जैसे कि आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जो भी इसमें प्रोग्राम आप इनबिल्ड करोगे या अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम जो भी आपकी ज़रूरत है या उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं है सपोज दैट आपने सिस्टम ऑन किया, लाइट चली जाती है तो आप यूपीएस से सिस्टम चल रहा है, आप वहाँ हो नहीं तो सिस्टम खुद बंद हो जाए, कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो चलता रहेगा। अगर आप उसमें कोई टाइमर लगा दिया है आपने के तो वो उसके अकॉर्डिंग बंद हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज जीरो IQ। उसके अंदर कोई IQ नहीं होता। कंप्यूटर मशीन एंड हैव जीरो IQ। वो मशीन होती है ना, उसके अंदर कोई फीलिंग होती है, नो फीलिंग। नेक्स्ट इज नो फीलिंग, जैसे कि आपकी बुक में नहीं है, आप लिख सकते हो नो फीलिंग। नो लर्निंग एबिलिटी, कोई लर्निंग पावर नहीं होती है उसके अंदर। ओके, these are the some limitation or weakness of computers. Okay, then and next हार्डवेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, और टुडेज होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली। आपके पास ये PDF मैंने सेंड कर दिया है, इसमें से चैप्टर को रीड करो और जो भी आपकी क्वेरी है उसे मैसेज करके मुझसे पूछो।
ठीक है, उसे सॉर्ट आउट करो। एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। आई विल स्टॉप हियर। ओके बेटा।